Warm welcome. May I also present to you Dr. Lalit Bhasin, Conference Chair, Mr. Pankaj Bora, National President, Mr. Arun Karna, Regional President, Dr. Upasana Arora, Executive Council Member, Dr. Atul Chauhan, Chancellor, Amity University. May I also welcome Mr. Abhishek Prakash, IAS Secretary, Industry Development, CEO in West UP. A very, very warm welcome, as I also request the kind presence of Dr. Nitin Seth, Regional Vice President, Mr. Mukesh Singh, Chairman, UP State Coordination Committee, ISCC, to please join us on the dais as we look forward to starting this absolutely fabulous moment right here amongst all of you. नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन करना चाहेंगे इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के इस खास सम्मेलन में, जहां अमृत काल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जहां इस सोच को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, जहां उद्योग से जुड़े हर साथी यहां मौजूद हैं। तो एक बार अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इस सोच को आगे ले जाने वाले दरअसल आप और आपके साथी ही तो हैं। इससे खास मौका हमें क्या मिल सकता था कि हमारे बीच आज माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर अभिनंदन करना चाहेंगे श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री। आप सभी की तालियों के साथ आज एक फ्लोरल वेलकम, जो कि मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर ललित भसीन जी और मिस्टर पंकज बोरा जी से कि वे आज इस खास शुरुआत में हमारा साथ दें। Extending a floral welcome by none other than Dr. Lalit Bhasin and Mr. Pankaj Bora to our chief guest. And taking our green initiative forward, we would like to present, sir, with a beautiful planter. May I request Dr. Upasana Arora and Mr. Arun Karna to please join us in felicitating, sir, and acknowledging his presence and presenting him with a beautiful planter. Thank you so very much. I'd like to request all of you all to please take a seat. To set the tone, to share with us what is it that we can look forward, may I now request Mr. Arun Karna to please join us in delivering the regional presidential address. A round of applause for Mr. Arun Karna, please. Namaskar. Good afternoon again. Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, our chief guest for the session. Secretary Industrial Development and CEO Invest UP, Mr. Abhishek Prakash, our guest of honor. Conference Chair and immediate past National President IICC, Dr. Lalit Bhasin, and a great leader. National President IICC, Mr. Pankaj Bora. Immediate past Regional President IICC and MD Yashoda Super Specialty Hospitals, Dr. Upasana Arora. RVP IICC, Mr. Nitin Seth, he is also the Vice Chairman of GD Foods Industries. Regional Council Member IICC and Chancellor, Amity University, Dr. Atul Chauhan. Mr. Mukesh Singh, Chairman of UP State Coordination Committee and Executive Council Member IICC. Senior leaders, dignitaries, ladies and gentlemen. Welcome all again to this extremely significant conference on strengthening Indo-US relationship in Amrit Kal Atmanirbhar Bharat. I'm deeply honored and privileged to stand before you as the Regional President of the Indo-American Chamber of Commerce. I extend my heartfelt gratitude on everyone's behalf to our distinguished Chief Guest, the Honorable Defence Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, for gracing this occasion with his esteemed presence. Sir, your leadership and commitment to the defense and security of a nation plays a crucial role in shaping the global strategic landscape, and we are privileged to have you here. The theme of our conference, Strengthening Indo-US Relationship in Amrit Kal Atmanirbhar Bharat, is particularly poignant in the current global context. It reflects not only a shared commitment to fostering stronger ties, but also a joint dedication to building a self-reliant and secure future for both India and the United States. The term Amrit Kal evokes the sense of collaboration
and mutual growth that we aspire to achieve. As we engage in discussions today, we recognize the immense potential that lies within the Indo-US relationship, especially in the context of defense and security cooperation. The Indo-American Chamber of Commerce has been instrumental in promoting economic ties between our nations, and today's conference marks a crucial step forward towards furthering collaboration in the defense sector. The defense ties between India and the United States have witnessed significant growth, marked by strategic dialogues, joint exercises, and collaborative research and development efforts. Our shared values of democracy, commitment to peace, and mutual respect lay a strong foundation for a robust partnership. The defense sector, with its cutting-edge technologies and innovative solutions, stands as a pillar of strength in the relationship. The cooperation between our defense industries not only enhances our national security capabilities, but also opens doors for collaboration in various other sectors as well. The Atmanirbhar Bharat initiative resonates deeply with the need for self-reliance and innovation, particularly in defense manufacturing. It is an opportunity for India and the United States to collaborate on co-development, co-production, and technology transfer, creating a win-win situation for both nations. I urge the defense and aerospace industries on both sides to explore avenues for collaboration, joint ventures, and technology partnerships. Together, we can create a formidable alliance that not only strengthens our defense capabilities, but also contributes to the growth of both the economies. In conclusion, I extend my sincere thanks to the Honorable Defense Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, for gracing this conference, and to all the participants for your engagement. Let us seize this opportunity to forge stronger ties, promote innovation, and continue to contribute to the security and prosperity of both our great nations. Thank you. Dhanyavad. Thank you so very much. And as I take this opportunity by thanking Sir, a humble request to all our presenters and those addressing to please keep their addresses brief. May I now welcome Dr. Upasana Arora, Immediate Past Regional President, IACC and Managing Director, Yashoda Super Speciality Hospitals, to please join us. नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, इस देश में नहीं, पूरे विश्व में सभी लोग पहचानते हैं, हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी को। इन्होंने बहुत तरह के रोल प्ले किए हैं, सभी को पता है, कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी गृह मंत्री रहे, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली लगता है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच देश की रक्षा करने के लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं था। जब से आपने इस पद को संभाला है, आपने देखा होगा हमारे सारे जवान कितनी नई तरह की सुविधाओं से, जिनसे वो वंचित थे, उससे उनका परिचय हुआ, और आज हमारा जवान सुरक्षा के लिए सीना तान के आगे खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है कि उनका मंत्रालय हमेशा उनके साथ है, उनके रक्षा मंत्री हमेशा उनके साथ हैं, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए। साथ ही साथ बहुत सारे रक्षा उपकरणों ने नया आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर बनना शुरू किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग भाई साहब को सुने, माननीय रक्षा मंत्री जी को सुने और समझें कि भारत और अमेरिका कैसे मिलकर इस पूरे विश्व पे एक ताकत के रूप में उभर सकता है। इसके साथ ही भाई साहब, आज माननीय रक्षा मंत्री जी आज यहाँ आए हैं, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देती हूँ, और सभी जो डायस पे बैठे लोग हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर अरोड़ा जी। आज आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात हमारे बीच रखी, और आइए इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पंकज बोहरा जी, नेशनल प्रेसिडेंट। जोरदार तालियां हो जाएं। Chief guest, Honorable Minister, Honorable Defense Minister, Government of India, Shri Rajnath Singh Ji, Guest of Honor, Secretary, Department of Industrial Development, Government of UP, Shri Abhishek Prasad Ji, Immediate Past National President, Indo-American Chamber of Commerce, Dr. Bhasin, Executive Vice President, IACC, Mr. Anup Acharya, all regional presidents, honorable members of
Executive Council of IACC, esteemed members, invited guests, ladies and gentlemen. Good afternoon to you all and a warm welcome to this session. First of all, with pleasure and honor, I extend our deep gratitude to Honorable Minister Rajnath Singh Ji for accepting our invitation, sparing his time from his very, very busy schedule and being with us this afternoon. Thank you very much, sir. Sir, your presence today with us is a testament of your deep commitment to the strong and enduring defense partnership between India and USA. The theme of today's conference, Strengthening Indo-US Relationship in Amrit Kaal, Atmanirbhar Bharat. The themes talk about self-reliance, which embodies a vision of prosperous and resilient future, and that is not only for India, but for the entire global community and the world peace. In the context of robust and self-sufficient defense ecosystem, self-reliance is a vision that not only strengthens our national security, but also promotes innovation, Indianization, and technological advancement within the defense sector. In this journey towards self-reliance, India and America play a very important role. Until today, India and United States have made significant strides in defense cooperation, may it be joint military exercises, defense technology transfers, and strategic dialogues. Moreover, as a member of a strategic alliance, that is Quad, India has been playing a very important role in the security of the Indo-Pacific region. I'm glad that today we are going to be honored by the address of Honorable Defense Minister, and we are going to have his vision and insight of Indo-US relationship in the defense partnership. Thank you very much. Thank you so very much, sir, for those words. And now taking this segment forward, sharing with us the overall perspective, may I please welcome Dr. Atul Chauhan, a Regional Council Member, IACC, and Chancellor, Amit University. आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि आप हम सबका मार्गदर्शन करने आए हैं। हम कहीं भी विदेश में जाते हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, सब लोग इंडिया को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। सब कहते हैं जो फ्यूचर है अगर हमारे वर्ल्ड का तो इंडिया है, और वो आपकी लीडरशिप की वजह से है। अगर हम सपना लेते हैं और हमें विश्वास है एक विकसित भारत में कि हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड का, हमारा आत्मनिर्भर भारत होगा, वो आप जैसे विजनरी लीडर की वजह से है हमारे देश में। बहुत धन्यवाद कि आप आए। The real Atmanirbharta of India can be seen in the defense sector. I witnessed this firsthand sitting in the Republic Day parade this year, where I had the honor to witness my young daughter who received the Prime Minister Bal Puraskar Award. When we saw the missiles, the tanks, the planes that have been designed in India, manufactured in India, it filled our heart with pride. Respected Honorable Defense Minister, if today we as Indians can be sure that our nation will have the most advanced defense forces, it is because of your leadership. And we are so grateful and thankful to you for that. India and the US have a great partnership in history and for the future. Education and research is one of those great areas. Just a few examples of where our Amity University is playing a part.
Last year, the Defense Threat Reduction Agency of the US has funded a $1 million project to Amity for advanced research on nuclear security. Our scientific leaders like Dr. Selmurthy, who are here, have been invited by the US Air Force Research Laboratories to conduct workshops and talks. We are having collaborative research projects with the US Department of Defense for injury coordination to see how to mitigate and treat soldiers of blast injuries. These are just some of the examples where India and US are working and collaborating in the field of defense research. On our 170-acre campus in New York in Long Island, we are building a large research hub to benefit our two nations. With this, I will conclude by saying that by working together, we can build a more interconnected and prosperous future for both nations. Honorable Rajnath Singh Ji, we are so grateful for your blessings. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so very much, sir. May I now have the privilege of inviting and welcoming the one whose brainchild this conference really is. To take this thought forward, may I please welcome Dr. Lalit Bhasin, Conference Chair and immediate past National President, IACC. Sir. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमने जब जब बुलाया आप आए। इससे बड़ी हमारे लिए और क्या बात हो सकती है। ये कोई एक बार नहीं, 2-3 बार हमारे इंडो अमेरिकन चैम्बर में राजनाथ सिंह जी आए हैं और पार्टिसिपेट किया है। बड़ी तो जब जब हमने बुलाया आप आए। पर आज का जो ओकेजन है बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है। इसमें हमारे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 30 एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स सारे भारत से इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हैं आपको सुनने के लिए। गुवाहाटी से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ दिल्ली से लेके मुंबई तक, गुजरात तक, जम्मू कश्मीर तक, सब तरफ से हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आज इकट्ठे हुए हैं। जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि किसी फंक्शन के लिए इतने सारी हमारी कमेटी जो है पूरी की पूरी वो आए यहाँ पर। और ये भी बहुत ज़रूरी है, आपका तो पुराना संबंध रहा है यूपी से भी, तो इस मौके पर हमने यूपी को अपना पार्टनर स्टेट चुना है। और कितने एमिनेंट हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं यूपी से। हमारे अतुल चौहान जी हैं, डॉक्टर उपासना अरोड़ा हैं यूपी में, मुकेश बहादुर सिंह हैं, सब लोग जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आपका यहाँ पे होना एक हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आपको सुनने हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हैं, पर सुनना आपको बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों ने बोला है इंडो अमेरिकन रिलेशंस के बारे में, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सबको मालूम है इंडो अमेरिकन रिलेशंस कितने ज़रूरी हैं, तुम्हारे संबंध ज़रूरी हैं। पर हम एक दूसरे को, हम अमेरिका को और अमेरिका हमको क्या कहता है और क्या कहना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए, हमें सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। तो हम जो आजकल दुनिया में हो रहा है उसका हम दोनों अगर मिल गए तो उस रुख को बदल देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सर। और जैसा कि आपने कहा कि आज दूर दूर से सभी लोग यहाँ आए हैं एक बहुत ही खास विजनरी को सुनने के लिए, उनसे सीखने के लिए। उनके लिए जितना भी कहा जाए
कम ही है, चाहे वो हो पोर्टफोलियोज जो उन्होंने अब तक निभाए हैं एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे, यूनियन सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के तौर पे, फूड प्रोसेसिंग के तौर पे, जिस भी रोल में वो रहे हैं, हर एक इनिशिएटिव उनका ऐसा रहा है कि यादगार बना है और कोई ना कोई डिफरेंस सोसाइटी में हमेशा ही आया है। तो आज हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि वह हमारे इंडस्ट्री लीडर्स को यहाँ सम्मानित करें, फेलिसिटेट करें और यहाँ आप सभी के बीच आज हम माननीय मंत्री जी से दरखास्त कर रहे हैं कि वह सम्मानित करें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर के रूप में डॉक्टर बीना मोदी, चेयरपर्सन मोदी एंटरप्राइजेज। जोरदार तालियां हो जाएं। A beautiful day as we take this moment and request Honorable Minister Sir to please felicitate leaders of the industry. We have with us Dr. Beena Modi, Chairperson Modi Enterprises, as we present her with a plaque for her Outstanding Businesswoman of the Year 2023. I'd now like to request her to please present a token of our appreciation and felicitate Dr. Nitin Seth, Vice Chairman, GD Foods Manufacturing India Private Limited, as we present them with the iconic food brand. A round of applause, please. And as we thank Government of Uttar Pradesh as our state partners, may I please request Mr. Abhishek Prakash, IAS Secretary Industry Development, CEO Invest UP, Department of Industries UP, and Mr. Ashish Tiwari to join us and accept the plaque of appreciation for the way they have been working in Uttar Pradesh. अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री ओपी सिंह जी से, IPS retired former DGP, Government of Uttar Pradesh, to please step forward and accept being felicitated for the contribution in developing a conducive atmosphere in UP. A round of applause, please. आप सभी के बीच यहाँ इस खास मौके पर आपका शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी डॉक्टर ललित भसीन से, डॉक्टर अतुल चौहान से और डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी से कि वह माननीय मंत्री जी को एक ऐसी प्यार भरी भेंट दे जो कि भारत में चाहे ही हम उसे शॉल के रूप में कहते हैं, पर सम्मानित किया जाए तो कुछ इस रूप में। जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी के बीच श्री राम के नाम के साथ ये बहुत ही खास टच, सर इसे हमारा पर्सनल टच कहें और इस सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर आपके कुछ शब्द जो हैं यहाँ पर हमारे सभी लीडर्स को बहुत इनकरेज करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ हमारे ऑडियंस को आप प्लीज संबोधित करें। ये तीसरा कार्यक्रम, अभी 2 कार्यक्रम और बचे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। ओह, मैं भूल गया, सैल्यूटेशन। डॉक्टर ललित जी भसीन, बहुत ही पुराना रिश्ता है भसीन साहब से मेरा। कॉन्फ्रेंस चेयर एंड इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिस्टर पंकज बोहरा, नेशनल प्रेसिडेंट IACC, मिस्टर अरुण करना, रीजनल प्रेसिडेंट IACC NIC, डॉक्टर उपासना अरोड़ा। आज मुझे मालूम हुआ कि इनका नाम उपासना है, मैं बराबर पूजा कहकर बुलाता था। इमीडिएट पास्ट रीजनल प्रेसिडेंट IACC, डॉक्टर अतुल चौहान, रीजनल काउंसिल मेंबर IACC, डॉक्टर नितिन सेठ, और कोई नाम तो नहीं छूटा? देवियों व सज्जनों, जब मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया तो हमारी इतनी अधिक व्यस्तता थी कि मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं इस कार्यक्रम में चाहते हुए भी मैं आ सकूं।
लेकिन आप सबका आग्रह था, डॉक्टर उपासना का विशेष आग्रह था कि नहीं आना ही होगा। तो हम लोग तो जनता के आदेश पर ही काम करने वाले लोग हैं, जनता ही हमको मैंडेट देती है। तो मैंने उस आदेश को स्वीकार कर लिया और आज आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मैंने पूछा कार्यक्रम की थीम क्या है, क्या बोलना होगा, क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा आपको जो मन हो वो बोल जाइए, कोई थीम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर के नाते ही आप सबने यहां आमंत्रित किया है। लेकिन वैसे इंडो अमेरिकन ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं मानता हूं इसका कोई भी कार्यक्रम होता है स्वाभाविक रूप से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों को किसी न किसी हद तक अप टू सर्टेन एक्सटेंट यह मजबूत ही करता है। इसलिए मैं यह मानकर आया हूं कि चाहे कार्यक्रम जैसा हो, जिस भी प्रकार का हो, लेकिन स्वाभाविक है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी न किसी हद तक मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। और अभी भी मुझे बतलाया गया कि इस कार्यक्रम में हमारी उत्तर प्रदेश की भी बहुत ही एक्टिव भागीदारी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें। इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, चीफ मिनिस्टर तो मैं भी रहा हूं, लेकिन वर्तमान चीफ मिनिस्टर के बारे में मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उन्होंने हाइट दी है और जिस तरीके से विकास का चक्का तेजी के साथ चलने लगा है, उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बहुत ही अच्छा काम इसमें चल रहा है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होती है, गवर्नेंस ठीक नहीं होती है, वहां पर जल्दी कोई चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो तो फॉरेन इन्वेस्टर हो, कोई आना नहीं चाहता, लेकिन अब आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ भारत अमेरिका के संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और यहां पर अभिषेक प्रकाश को मैं आज से नहीं, आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं, अच्छा काम करने वाले उत्तर प्रदेश में एक अफसर माने जाते हैं, शायद इसीलिए उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मैं मानता हूं कि जब आप लोगों ने मुझे कुछ बातें रखने का अवसर दिया है तो मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सभी मित्रों के बीच कुछ अपने विचार में साझा करूंगा। जब आज हम यहां पर कुछ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यह कॉन्फ्रेंस तो बिजनेस की है, कॉमर्स से रिलेटेड है, फिर डिफेंस मिनिस्टर का रोल इसमें क्या है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बिजनेस से संबंधित डिग्नेटरीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते तो एक बार बात समझी जा सकती थी, लेकिन बिजनेस का रक्षा से क्या संबंध हो सकता है, यह सवाल उठना किसी के मन में यह स्वाभाविक है। वैसे मेरे दिमाग में क्लैरिटी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह प्रश्न खड़ा हो सकता है। लेकिन साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, डिफेंस और बिजनेस इन दोनों का एक दूसरे से बहुत ही डीप कनेक्शन है। जो लोग बिजनेस और कॉमर्स का सिक्योरिटी और डिफेंस के साथ को रिलेशन नहीं समझते हैं, दरअसल उन्हें न तो बिजनेस की अच्छी तरह समझ है, न तो उन्हें सिक्योरिटी की अच्छी तरह समझ है, और न तो वे लोग स्ट्रेटेजिक मैटर्स को समझ पाते हैं और न ही जिस तरीके से कॉमर्स को समझना चाहिए, न तो वह कॉमर्स को ही समझ पाते हैं। आप माइक्रो लेवल पर ही इसका उदाहरण देख लीजिए। यदि आप एक छोटा सा इंटरप्राइज खोलते हैं, कोई छोटा सा भी एक आप व्यापार यदि प्रारंभ करते हैं, तो जिस इलाके में आपका व्यापार होता है उस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, उस इलाके में सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, उसमें रूल ऑफ लॉ कैसा है, इन सब सारी चीजों को स्वाभाविक रूप से देखते हैं। इसलिए देखते हैं कि यह सारी चीजें आपकी इंटरप्राइज को,
ये सारी चीजें आपके उद्योग को प्रभावित करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। जब हम माइक्रो लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर मैक्रो लेवल पर जाते हैं तो ये चीजें और भी रेलेवेंट हो जाती हैं। क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस और सिक्योरिटी का तो एक दूसरे से कुछ इस प्रकार का संबंध है कि एक के बिना दूसरा किसी भी सूरत में नहीं चल सकता है। यदि आप अपने देश में डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट चाहते हैं, कोई स्टेट हो अथवा कोई कंट्री हो, यदि अपने यहां डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट यदि चाहता है तो उसे अपने देश में पुख्ता सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। आपको इन्वेस्टर्स के लिए एक उचित माहौल भी तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने देश में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, तभी आपके देश में बिजनेस स्मूथली रन कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क भी इंटरनेशनल बिजनेस और कॉमर्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस ग्राउंड रियलिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आपने ये चीजें महसूस की होंगी कि यदि कोई देश पॉलिटिकली स्टेबल है, राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है, तो उस देश में इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या में स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए वह आते हैं। और यदि कोई देश पॉलिटिकली अनस्टेबल है तो सामान्यतः इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट करने की उसकी कोई रुचि नहीं होती है। वैसे तो यह बात दूसरी तरफ से ही उतनी ही लागू होती है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने देश में सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं, डिफेंस कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करें, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ेगी ही पड़ेगी। और डिफेंस तथा सिक्योरिटी के लिए आपके पास रिसोर्सेज तभी आएंगे जब आपके देश में बिजनेस और कॉमर्स यह मजबूत होगा, नहीं तो रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। यह तो जाहिर सी बात है, किसी देश में जब बिजनेस या कॉमर्स मजबूत होगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और उन कलेक्टेड टैक्स से डिफेंस और सिक्योरिटी पर एक्सपेंडिचर होता है, जिससे उस देश की ओवरऑल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। यानी उस गवर्नमेंट के अंदर यह हिम्मत आती है, गवर्नमेंट के अंदर एक ताकत पैदा होती है ताकि मैक्सिमम वह कैपिटल एक्सपेंडिचर वह कर सके। मित्रों, इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे बिजनेस इंटरप्राइजेज मजबूत होते हैं तो वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अपना कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वह नई नई टेक्नोलॉजीज की तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। नए नए इक्विपमेंट बनाने पर भी उनका विशेष आग्रह रहता है, जो आगे चलकर हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अब स्वाभाविक रूप से यह नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती है। इसी तरह डिफेंस सेक्टर में अनेक ऐसी टेक्नोलॉजी उभर कर आती हैं जिनका ड्वेल यूज है। ड्वेल यूज है, डिफेंस में भी है और सिविल में भी है, दोनों में भी है। मेरे कहने का आशय यह है कि दोनों ही चीजें यानी बिजनेस और सिक्योरिटी एक दूसरे से पूरी तरह से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। यदि किसी देश में बिजनेस इन्वायरमेंट मजबूत होगा, यदि किसी भी देश में बिजनेस इन्वायरमेंट मजबूत होगा तो उस देश की सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। और यदि किसी देश की सिक्योरिटी मजबूत हो रही है तो वह उस देश के बिजनेस इन्वायरमेंट को भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा ही होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बिजनेस और सिक्योरिटी के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन को तो यूएसए ने हमेशा ही समझा है। बिजनेस और सिक्योरिटी के बीच एक पॉजिटिव कोरिलेशन को अमेरिका ने, यूएसए ने बराबर इस हकीकत को समझा है। और इस संदर्भ में मुझे कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। साथियों, सबसे पहला उदाहरण मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में यूएसए द्वारा जो भूमिका निभाई गई वह स्वाभाविक रूप से मुझे आज भी याद है। यूएसए ने जिस प्रकार फाइनेंशियल एड और टेक्निकल असिस्टेंस जापान को उस समय दिया था,
उससे न सिर्फ युद्ध से प्रभावित इन क्षेत्रों के फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन में उसने अपना यह योगदान दिया, बल्कि युद्ध के बाद इन क्षेत्रों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में भी अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जापान में। और इसी बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी के साथ यूरोप और जापान का यूएसए और दुनिया के बाकी देशों के साथ इकोनॉमिक इंटरैक्शन और मजबूत हुआ। फिर इसके माध्यम से सिर्फ यूएसए ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया के कई सारे देश उस प्रॉस्पेरिटी से लाभान्वित हुए। यदि मैं स्पेसिफिकली मार्शल प्लान की यहां पर यदि आप सबके सामने यदि मैं बात करूं, तो कई लोगों का मानना है कि मार्शल प्लान के अंतर्गत यूएसए के इंटरवेंशन ने यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी मदद की थी। जिस तरीके से मार्शल प्लान के माध्यम से यूरोप में ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया, उसने न सिर्फ यूरोप के इकोनॉमिक रिवाइवल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उस पूरे रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमें वैश्विक स्तर पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना होती है। वैसे तो इनकी स्थापना का उद्देश्य मॉनेटरी स्टेबिलिटी एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी भी सुनिश्चित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, सारे उदाहरण जो मैंने अब तक आपके सामने रखे हैं, यह सारी चीजें यह बताती हैं कि बिजनेस और कॉमर्स या फिर कुल मिलाकर कहें तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का किसी भी देश की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से बहुत गहरा नाता होता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है। अतीत के उदाहरण से आगे चलकर यदि हम वर्तमान पर केंद्रित हों, तो यूएसए के फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रिव्यू मॉडर्नाइजेशन एक्ट, एक एक्ट यूएसए ने बनाया था जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्क रिव्यू मॉडर्नाइजेशन एक्ट। इसकी बात सामने आती है और इसके बारे में मैं आपको कुछ बतलाना चाहूंगा। यह कानून उन क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए लाया गया था, यह कानून उन क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए लाया गया था जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बन सकती थी। उसको रोकने के लिए यह एक्ट पास किया गया था वहां की सीनेट और कांग्रेस के द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स में फॉरेन इंटरवेंशन ज्यादा हो जाता है जो किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी को एडवर्सली इंपैक्ट करता है अथवा इंपैक्ट कर सकता है। तो एक तरह से उन चिंताओं का समाधान करने के लिए अमेरिका के द्वारा इस कानून को लाया गया था। साथियों, सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देश अपने अलग अलग कानूनों या सिर्फ सरकारी आदेशों के माध्यम से अपनी नेशनल सिक्योरिटी और बिजनेस एंड कॉमर्स के बीच संतुलन बनाने का बराबर ऐसे ऐसे कानून बनाकर बराबर वो प्रयास करते हैं। आज की तारीख में आप बिजनेस तथा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अलग अलग रखकर किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यह मेरा पक्का विश्वास है। आपको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और ये चलना होता है। भारत के बारे में भी यही बात लागू होती है। हम भी दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। हमारे लिए भी जितना महत्व बिजनेस और कॉमर्स का है, उतना ही महत्व हमारे लिए डिफेंस और सिक्योरिटी का भी है। अगर इस पृष्ठभूमि के बाद वर्तमान भारत अमेरिका संबंधों पर यदि हम गौर करें, तो हम पाएंगे कि भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती से हम दोनों ही देशों के परस्पर बिजनेस इंटरेस्ट और सिक्योरिटी तथा डिफेंस से संबंधित हमारे इंटरेस्ट को साधने में हमारे प्रयासों को काफी ताकत मिलती है। जो भी हम इफर्ट्स कर रहे हैं उसको काफी मजबूती मिलती है।
भारत और अमेरिका दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत और अमेरिका एक फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के समर्थक हैं। इसके चलते हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी काफी अलाइंड हैं। साथ ही हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप दोनों देशों के लिए यह एक विन विन यह प्रपोजिशन है। जहां तक बिजनेस एंड कॉमर्स की बात है साथियों, तो भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अभी हमारे अतुल जी बतला रहे थे, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो भाई मानी जानी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, मॉर्गन स्टैनले को ही आपने सुना होगा, कई ऐसी फर्म्स ने दावा किया है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जिस तेजी से बढ़ रही है, माने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड की इस समय हम हैं। वन ऑफ द नहीं कहना चाहता हूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इस समय हम हैं। हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। अब तो कॉन्फिडेंस हम लोगों का इस सीमा तक बढ़ गया है कि अमृत काल समाप्त होते होते यानी 2047 आते आते भारत दुनिया की डेवलप्ड कंट्री बनकर खड़ी हो जाएगी। मैंने ख्वाहिश तो यह भी है कि जिनके बीच संबंधों की बात हो रही है, उनका भी सहयोग चाहिए। लेकिन इस काम के लिए हमें काफी बड़ी मात्रा में कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की जरूरत है, जिसमें अभी हमको अमेरिका की जरूरत है। अमेरिका हमारी मदद कर सकता है और हमारी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ यह सुनिश्चित करेगी कि जो भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट या कोलैबोरेशन भारत में आता है, उसका बहुत हाई रिटर्न हमारे अमेरिकन पार्टनर्स को भी मिले। यह हमारी ऑनेस्टी है, हमारी थिंकिंग की ऑनेस्टी, हमारे सोचने की। जो कुछ भी आता है इन्वेस्टमेंट या कोलैबोरेशन जो भी मिलता है, उसका हाई रिटर्न हमारे मित्र, हमारी फ्रेंडली कंट्री हमारे अमेरिका को भी मिले। यह केवल दोस्तों केवल भारत सोच सकता है, दुनिया का कोई दोस्त नहीं सोच सकता। ये क्यों सोच सकता है? क्यों सोच सकता है? भारतवासी बहुत बड़े मन के होते हैं। यदि हम बड़े मन के हमारे ऋषि और महर्षि न होते तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। माने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही हम अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। ये बड़े मन का ही कोई व्यक्त कर सकता है, इस प्रकार के भाव व्यक्त कर सकता है। और जो बड़े मन का होता है वही स्पिरिचुअल होता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। मैं तो बच्चों को कभी कभी पढ़ाते समय, मैंने पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन कभी कन्वोकेशन वगैरह में जाता हूं बच्चों को, तो मैं कहता हूं स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। उसका पार्ट हो सकता है मन का बड़ा होना, यही स्पिरिचुअलिज्म है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम्हारा मन सर्किल है, सर्किल का सरकमफेरेंस बढ़ाते चले जाओ, उसी रेशियो में तुम देखोगे तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में तुम परमानंद की प्राप्ति करोगे। तो मैथमेटिकल फार्मूले में, चूंकि मैं फिजिक्स का टीचर रह चुका हूं, इसलिए मैंने कहा सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is directly proportional to Paramanand. क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, परिणाम नहीं होता, परमानंद अतीत है। माने यह कि जो भी हो हमारे यहाँ, उसका लाभ हमारे फ्रेंडली कंट्री को भी मिले, यह हम ही सोच सकते हैं। इसलिए यह बात मैंने कही। भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मित्रों, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स, हमारी एमएसएमई, हमारे वाइब्रेंट स्टार्टअप्स,
हमारे एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स और हमारा बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट, ये सारी चीजें मिलकर अमेरिकन कंपनी तथा इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न की गारंटी देती है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगा। हाई रिटर्न के साथ साथ मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स को भारत में इन्वेस्टमेंट या कोलैबोरेशन करने से डी रिस्किंग का भी लाभ मिलेगा। डी रिस्किंग का भी लाभ मिलेगा। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को जो चैलेंज मिल रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने तथा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी होगा कि हमारे अमेरिकन बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्ट और कोलैबोरेट करके डी रिस्किंग करें। क्लियर? मैं यदि इसे समराइज करूं तो भारत में आपको हाई रिटर्न के साथ साथ डी रिस्किंग का एक एवेन्यू भी मिलेगा और भारत को आपके कैपिटल तथा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से रैपिडली ग्रो करने में और भी मदद मिलेगी। साथियों, वर्तमान में जिस तरह का ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट है, उसे देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत और अमेरिका दोनों ही नेचुरल पार्टनर्स एक साथ मिलकर बिजनेस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर दोनों ही क्षेत्रों में आगे बढ़ें। कदम से कदम मिलाकर दोनों देश आगे बढ़ें। भारत अमेरिका संबंधों की विशिष्टता की चर्चा में एक और तरीके से आप सबके सामने यहां पर करना चाहूंगा। कहीं भी दो व्यक्तियों, संस्थाओं या राष्ट्रों के संबंधों का इवोल्यूशन, विकास, दो चीजों पर आधारित हो सकता है। एक तो उनके आइडियल्स, लाइक्स, डिसलाइक्स आदि, जिनको ब्रॉडली आप उनके वैल्यूज कह सकते हैं, यह मिलते हों। लाइक्स, डिसलाइक्स, आइडियल्स यह मिलते हों, तब हो सकता है उनके संबंधों का इवोल्यूशन। यानी आपके वैल्यूज में सिमिलरिटी है, तो इस बात की बहुत हद तक संभावनाएं हैं कि आपके संबंध भी अच्छे होंगे। रिलेशनशिप बिल्ड करने का दूसरा फैक्टर यह हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट अलाइंड हों। दूसरा फैक्टर यह हो सकता है, यदि ब्रॉडली आपके इंटरेस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आपके परस्पर संबंध स्वाभाविक रूप से अच्छे हों। साथियों, कई बार हम देखते हैं कि हम ऐसे संबंध भी डेवलप कर लेते हैं जहां हमारे इंटरेस्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज मिल रहे हैं, हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स से सब सारी मिल रही है। तो ठीक इसके विपरीत भी हमको यह देखने को मिलता है, जहां हमारे वैल्यूज भले ही न मिल रहे हों, लेकिन हमारे इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं, तो भी हमारे रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। ब्रॉडली इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए तो इंटरेस्ट का अलाइंड होना यह बहुत ही आवश्यक होता है। यानी आपसे दोस्ती के कारण मेरा भी इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, आपका भी इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, तब तो ये तो आवश्यक है अच्छे संबंध बनाने के लिए भी। मैं फ्रैंकली बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट का अलाइन होना कई बार वैल्यूज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कई बार उससे ज्यादा आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, 50 और 60 के दशक में, 50s और 60s में भारत और अमेरिका के वैल्यूज तो लगभग एक जैसे ही थे। हम तब भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, तब भी हम ह्यूमन राइट्स का सम्मान करते थे, अमेरिका भी सम्मान करता था, हम भी सम्मान करते थे। हम तब भी रूल ऑफ लॉ के पक्षधर थे, भारत और अमेरिका दोनों। लेकिन कोल्ड वॉर की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि हमारे इंटरेस्ट अलाइन नहीं है, इसलिए हमारे संबंधों में वह गहराई नहीं आ पाई जो आनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 2-3 डिकेड्स में जिस तरीके से माहौल बदला है, उसमें यह बात और मजबूत होकर सामने आई है कि हमारे वैल्यूज तो सिमिलर हैं ही, लेकिन वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स तथा भविष्य के हिसाब से भी देखें तो हमारे इंटरेस्ट भी अलाइंड है। ये चीज अब उभर कर आई है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, the current Indo-US relationship is driven by twin congruence of our shared values and aligned interests. Such twin congruence is a guarantee for long sustainability and robustness of our relationship
या उसे कह सकते हैं ऑफ आवर फ्रेंडशिप। साथियों, मुझे देखकर भी अत्यंत प्रसन्नता होती है कि भारत और यूएसए समय की जरूरत को भांपते हुए इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। मैं एक दो उदाहरण दूंगा जो भारत और यूएसए के बढ़ते संबंधों को स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रेखांकित करेगा। स्पेस सेक्टर में भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, क्योंकि स्पेस सेक्टर में इसमें भारत करिश्मा कर रहा है। स्पेस सेक्टर में भी आप ध्यान दें तो आप सब जानते हैं कि भारत का इसरो और अमेरिका का नासा, ये दोनों मिलकर उन्होंने निसार बनाया है। निसार नामक एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर, वहां का हमारा इसरो और उनका नासा। इसके माध्यम से दोनों ही देश अर्थ साइंस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और क्लाइमेट चेंज में जैसे अनेक क्षेत्रों में एक दूसरे को हम कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, भारत और अमेरिका। स्पेस सेक्टर के अलावा यदि मैं डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात करूं तो मुझे भारत और यूएसए के मध्य डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसे DTTI कहते हैं, का भी यहां पर स्वाभाविक रूप से स्मरण आता है, जहां भारत और अमेरिका अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, सरकारी स्तर पर आगे बढ़ते हुए कारपोरेट स्तर पर भी आज अनेक भारतीय कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसकी आप सबको अच्छी तरह जानकारी है। यूएस और इंडियन कंपनी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के माध्यम से कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। एफडीआई, ज्वाइंट वेंचर आदि के माध्यम से मिलकर साथ काम करने से दोनों ही देशों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिल रहा है। हमें भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा और अमेरिका को भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि लगभग हर स्तर पर भारत और अमेरिका आज लगभग एक साथ मिलकर इस समय काम कर रहे हैं। हमारा साथ मिलकर काम करना एक दूसरे की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज हो रही है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो क्या है? आप जानते हैं, भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं। यदि मॉडर्न डेमोक्रेसी के आधार पर बात की जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका भी सबसे पुराना लोकतंत्र है। वैसे मुझे इस पर तर्क देना हो तो मैं कुछ दूसरा भी तर्क दे सकता हूं, लेकिन यहां नहीं दूंगा। अब जब दो बड़ी डेमोक्रेसी आपस में कोलैबोरेशन करेंगी, क्योंकि अब यहां पर हैं, यहां तो संभल के भी तो बोलना है। अब जो दो बड़ी डेमोक्रेसी आपस में कोलैबोरेशन करेंगी तो निश्चित रूप से यह डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर को और भी मजबूत बनाएगा। ये पूरी दुनिया में रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक साथ मिलकर काम करना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए अमेरिका और भारत दोनों को कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। साथियों, चूंकि आज की कॉन्फ्रेंस अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा के आलोक में हो रही है, इसलिए मैं भारत की आत्मनिर्भरता के विचार के बारे में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य एटॉर्की नहीं है। हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम वैश्विक व्यवस्था से ही पूरी तरह से कट जाए। हम ऐसी भी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम एक ऐसा भारत बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहकर काम करे। ऐसा भारत हम नहीं बनाना चाहते, बल्कि साथियों, हम तो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। हमारे प्रयासों में ये बातें स्वाभाविक रूप से आज दिख भी रही हैं और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज इसे महसूस भी कर रही हैं। हमारा आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम आइसोलेशन को नहीं बल्कि कंपेनियनशिप को बढ़ावा देता है। हमारा आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम आइसोलेशन को नहीं बल्कि कंपेनियनशिप को बढ़ावा देता है। हमारी तो संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम की है, जो मैंने पहले कहा, जब हमारे लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है तो हम दुनिया से अलग रहकर भला
अपना विकास कैसे कर सकते हैं और दुनिया से अलग रहकर अपना विकास करने की हम सोच भी नहीं सकते। यह भारत अपनी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहने के लिए हमने भारत के हर क्षेत्र में बहुत सारे व्यापक बदलाव किए हैं। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तथा हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स का लाभ वो उठाएं, वो आएँ और हमारे स्किल्ड लेबर फोर्स का लाभ उठाएं। इसके लिए हमने एफडीआई और लेबर लॉज में भी कई इधर रिफॉर्म्स किए हैं पिछले 8-9 वर्षों में। यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो हम भारत में नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आप लोग सहमत होंगे, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी हम अब काम कर रहे हैं। आप लोग शायद महसूस किया होगा आप लोगों ने। रोड, रेलवेज, वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 10 साल पहले जिन विदेशियों ने भारत को देखा था, आज देखते हैं उनको अंतर साफ दिखाई देता है। भारत एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है साथियों, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भारत डेवलप कर रहा है। और आज भारत में वो सारी चीजें मौजूद हैं तथा उन सारी चीजों पर काम हो रहा है जो हमारे संबंधों को समग्रता में यानी कंप्रेहेंसिव वे में और मजबूत बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध हो सकती हैं अमेरिका के साथ। मुझे विश्वास है कि इंडो यूएस कोलैबोरेशन में हमारे सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के साझा उद्देश्यों को साकार करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसको लगातार इसे और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहना चाहिए। मैं इस सम्मेलन के सभी पार्टिसिपेंट से इस कोलैबोरेशन के पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का भी आग्रह करता हूं और इसके साथ ही मैं आप सब से यह भी आशा करता हूं कि आप सभी एक यहां पर सार्थक चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज को शेयर करेंगे और जो भी आपके इंसाइट्स होंगे, जो भी आपका नजरिया होगा, जो भी आपके दृष्टिकोण होंगे, वो भी आप शेयर करेंगे और जो कुछ भी निकल कर आएगा स्वाभाविक रूप से शासन को भी मिलते जुलते रहते हैं, आप अवगत कराएंगे और उससे देश को लाभ होगा। और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के संबंधों को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब तक इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो अपना रोल प्ले किया है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में, उसके लिए मैं इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और उसके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। डिफेंस की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन डिफेंस की बहुत सारी बातें से छूट गई, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा उस पर। डिफेंस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, हम आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली नहीं, चींटी की चाल से नहीं, ठीक चल रहे हैं। जिस चाल से चलना चाहिए उसी चाल से चल रहे हैं कि हमारी टांग आगे चलकर लड़खड़ाने भी न पाए। मजबूत कदम रखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, कोशिश हमारी यही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पर हमारा एक्सपोर्ट केवल सबसे बड़ी वेपन्स, आर्म्स, एमिनिशन इंपोर्टिंग कंट्री इस दुनिया की कोई थी, भारत थी। और आज दुनिया की टॉप 25 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आकर भारत खड़ा हो गया। और आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी तय किया है हमने, 75% वो कह दिया प्राइवेट इंडस्ट्री को जाएगी। आपके कोलैबोरेशन से हम बनाना चाहते हैं, ये हम लोगों की कोशिश है। और थोड़ा इस समय रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है और जिस प्रकार से इजराइल, हमास, फिलिस्तीन, कई कंट्रीज का इधर उधर से बहुत सारा वो है, कुछ इसमें अलाइंड ही हैं, सब किसी न किसी एक्टिवली इनएक्टिवली, सक्रिय रूप से अथवा मानसिक रूप से, तो उसके कारण भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है एक्सपोर्ट वगैरह को भी लेकर। लेकिन सब मिला जुलाकर इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत आगे बढ़ता जाएगा और ये मानकर चलिए कि भारत कमजोर भारत नहीं है।
भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। ऐसा नहीं कि कोई आए और आंख दिखाकर निकल जाए, अब ऐसा नहीं होगा। आंख जो दिखाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह है आपका भारत। इसलिए पूरे विश्वास के साथ बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए। यही आप सबसे अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी श्री राजनाथ सिंह जी का।